السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ۔ خان صاحب کے جلسے نے متاثر کیا، بہت بڑا کراؤڈ تھا اور لوگ آئے ان کی پکار پہ، لوگوں نے لبیک کا اور اچھا ہوا، کیونکہ اب اگر کوئی میں عمران خان کا حامی تو ہوں نہیں، لیکن اگر ایک طرف آپ دیکھیں فضل جیسے لوگ، زرداری جیسے، نواز یا شہباز، ان جیسے لوگ دیکھیں، اور دوسری طرف اگر آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں تو لا محالہ جو ایک اچھا انسان ہوگا، جو صحیح پاکستانی ہوگا، وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک طرف وہ سب جمع ہو جائیں اور ایک طرف خالی عمران خان ہو، اگر وہ یہ لوگ کہیں کس کو چنتے ہو تو لوگ عمران خان کو ہی چنیں گے۔ ان سب سے تو بہت بہتر ہے ہر شخص میں نقص ہوتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر جب بہت زیادہ برے لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو جو کہتے ہیں جس کو سب سے کم برا ہے اس کو چن لو، تو وہی مثال یہاں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا ہے، ایک مثال بات کر رہا ہوں، مثال دینے کے طور پہ اگزامپل، کہ اگر ایک طرف وہ سب لوگ جمع ہوں، ایک طرف خالی عمران خان ہو، تو لوگ پھر چنیں گے عمران خان کو۔ ان کو وہ تو آزمائے ہوئے 35 40 سال سے، وہ آزمائے ہوئے، سب کو آزمایا ہوا ہے۔ کوئی کشمیر کمیٹی پہ بک جاتا ہے، کوئی ہے نا عربوں کے اس پہ بک جاتا ہے، کوئی کہاں مغرب میں ہاتھوں بک جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی ان کے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ملک و قوم کا نقصان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ فی الحال ایک بات تو طے ہے کہ اگر عمران خان چلا گیا، جیسے کہ چانس زیادہ ہیں، لیکن جانے کے فوراً بعد ہی اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو یہ ملک کو ڈیمیج کم دے سکیں گے اتنی سی دیر میں، تھوڑی دیر میں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کی آنے والی اندر 2 نسلیں پھر غلامی میں چلی جائیں گی، اور 2 نسلوں کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ایک نسل کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اب ٹائم ہے نہیں۔ جو واقعات 2023 میں ہونے تھے واقعات و ترتیب کے ساتھ، وہ 2022 میں شروع ہو گئے، فاسٹ لائن میں آ گئے ہم لوگ۔ جو واقعات 23 میں ہونے تھے وہ 22 میں شروع ہو گئے، تو 1 سال ہم سمجھ لیں فاسٹ چل رہے ہیں۔ تو اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، عالمی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، اور قحط سالی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہر حکمرانوں کو، اگر پاکستان میں اچھے حکمران رہے تو وہ کم سے کم 1 سال کا غلہ عوام کے لیے یہ بندوبست کر کے رکھ لیں گے، ورنہ دوسرے آ گئے تو وہ صرف اپنے گھر بھریں گے، عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔
और फिर आवाम को भी अच्छी बात है सजा मिलनी चाहिए, चल मिलेगी ना, इसी बात में मिलेगी कि तुम ही थे ना जो उन लोगों को लेके आए, अब भुगतो। पहले तुमने भुगता इतने 30 30 40 40 साल एक एक पार्टी की हुकूमत रही, फिर भी आवाम को अकल नहीं आई। अफसोस ये होता है कि अल्लाह ताला ने इनके जहन में मोहर लगा दी है, लगता है मुझे, कि जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, देख रहे हैं, फिर भी मोहर लग गई है इनके दिलों पे और दिमाग पे, कि फिर उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये बहुत बुरा अलमिया है। याद रखें, आपकी मदद तो कोई दूसरा नहीं आएगा, आपने अपनी मदद खुद करनी होगी, खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप ही चाहते हैं कि अपनी जायदादें यहाँ छोड़ के वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, भूले आपकी, उनकी फ्लाइटें तैयार होती हैं, विद इन आवर निकल जाएंगे मुल्क से, आपको बेयार और मददगार छोड़ देंगे। ये बात लिख लीजिए मेरी आप। ये लोग टिकेंगे नहीं पाकिस्तान में, भाग जाएंगे अगर कोई बुरा वक्त आया तो। आपको साथ देना होगा जो असली सही मायनों में लीडर होगा, वही आपका साथ देगा, वही खड़ा होगा आपके साथ। आप कुछ भी कह लें, कि कुछ भी कह लें यूक्रेन को, जैसा भी है, उनका सदर टिका हुआ है, खड़ा है, जबान से इकरार नहीं करता कि मैंने, हालांकि हार चुका है, लेकिन जबान से इकरार नहीं करता कि हम लड़ेंगे आखिरी दम तक, चाहे वो अंदर कुछ भी हो, लेकिन कौम के साथ तो है ना, कौम का हौसला तो है ना कि हाँ भाई हमारा लीडर खड़ा है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। ये हाथ जोड़ने वाले, लेटने वाले, झुकने वाले, बूट पालिशिए, ये सब छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, इमरान खान के अंदर ये कम से कम ये क्वालिटी तो है, वो छोड़ के भागेगा नहीं, लड़ेगा। तो दुआ करनी चाहिए कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस अगर अपुल भी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से विद इन ए 3 to 6 month इलेक्शन हो जाएंगे, और फिर आप जिसे चाहें लाएं, लेकिन ये सोच लीजिएगा कि ऐसा लीडर होना चाहिए जो आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि मैं अपनी कौम के साथ हूँ। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने वो जो तकरीर बड़ी अच्छी थी, सुनी थी मैंने, वो लेटर निकाल के दिखा रहे थे, ये थोड़ा सा ओवर कर गए, थोड़ा सा ओवर कर गए, लेकिन बहरहाल सियासत होती है, करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना, आपने कभी सुना होगा जो इतनी बड़ी ताकतें होती हैं वो सबूत अपने हाथ से दे दें कि हाँ भाई ये सबूत है हमारे खिलाफ, कर लेना। होता है ऐसा, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, इवन के टेलीफोन पे भी बात नहीं करते इस टाइप की, इसलिए वफद भेजे जाते हैं। अब देखा हो ना, जाते हैं वफद, जाते हैं इस मुल्क उस मुल्क, कभी पाकिस्तान कभी कहाँ, वो यही बात करने जाते हैं कि भाई फिर ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होता लिख के देना लेटर में कि भाई हम तुम्हें ना ये कर देंगे और वो कर देंगे, ताकि जो ना वो, आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी, कोई कितना भी कमजोर से कमजोर मुल्क होगा, कमजोर क़यादत होगी, वो लिख के दे देगा दूसरे को मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तो फंस गया। अगर ये फिर इसको इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करो, क्रिमिनल उस पे जुर्म लगवाओ, तो ये बहुत बड़े वाकया होता है। ऐसा नहीं होता, वो ज़्यादा कुछ जज्बात में आके शायद कर लिया होगा, जैसे भुट्टो साहब ने भी किया था कि हेनरी किसिंजर ने मुझे ये ख़त लिखा है, वो भी सियासत थी, सबको पता है सियासत में होता है ऐसा। लेकिन मेरा ये बहुत ज़्यादा हो गया कि मुझे ख़त लिख रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, ऐसा हिस्ट्री में कभी आपको मिलेगा नहीं। ना कोई मुल्क इतना बड़ा रिस्क लेगा कि भाई इतना बड़ा रिस्क ले लूं कि मैं रिटर्न दे दूं।
टेलीफोन भी नहीं, ऑडियो वीडियो भी नहीं, रिटर्न दे दूंगा कि हाँ भाई ये होगा। तो ये मुझे हंसी भी आई थोड़ी सी। और बहरहाल होता है, सियासत में करना पड़ता है, थोड़ा सा आवाम को भी समझ जाए कि हाँ भाई ऐसा होता है। आ, अब ये इमरान खान साहब अगर चले जाएंगे तो समझ लीजिए कि फिर, अगरचे वो लेटर की बात करते हैं, तो इसका मतलब भी इस्टेब्लिशमेंट भी इस साजिश में शामिल है। फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी आपकी मुजरिम है, क्रिमिनल है, बेईमान है, चोर है, डाकू है। और अगर नहीं जाते तो फिर इसका मतलब होगा इस्टेब्लिशमेंट आपकी सही है, सही फैसले कर रही है। क्योंकि इनके साथ मिलकर इमरान खान को निकालना, तो ये बात कंफर्म हो जाती है फिर इस्टेब्लिशमेंट भी इस साजिश में शामिल है। और कोई बईद नहीं कि वो इमरान खान के साथ कोई ऐसा काम कर जाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल होता है। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ था, याद है ना सबको। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, सबको पता है। तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, इमरान खान को भी एहतियात करनी चाहिए। और ये सब देखने अगर इमरान खान गया तो इस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर आवाम के बच्चे बच्चे जहन में हो जाएगा कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही सबसे बड़ी मुजरिम यही है, जो ऐसे चोरों को बार बार लेके आती है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।